Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, before we continue, hope you are able to see my screen. This was designed by Aniruddha, one of my member in the Telegram group. Thank you Aniruddha for designing this template for me. Going forward, I will be using this template. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe my channel and click the bell icon. So this is the pre-market report video for 17 November 2025. That is for Monday. So in this video, friends, I'm going to cover FNO analysis, post-market analysis and chart review. We are also going to look at the top gainers and losses. And we'll also look at the technical view and outlook for Monday. At the end, we'll also discuss about the pre-market levels, where to go for long and where to go for short. So in this video, I am covering all the levels for Nifty, Bank Nifty, Sensex, Mid Cap, India Wix, USD, INR, crude, gold, silver, everything it is covered. So please make sure that you are subscribing to my channel, and in that way you'll also get notification for my learning videos as well. So without further ado, let us continue. So, friends, we have witnessed a very sideways market on last Friday, and that was the Bihar election result day. So, everyone was expecting BJP will win, and that was the pre-poll, exit poll verdict as well. And from the morning itself, not even one time, BJP's lead was going down. So, market was already factored that move a day before. If you look at Thursday's move, market was factoring that move, and because market is always forward looking. But then what happened? Okay, there was a heavy operator play in our market. So if people agree or not, this is the clear indication. So you look here, after 3 o'clock, Nifty moved 180 points, Sensex moved 600 points, and Bank Nifty 400 points, मिड कैप सेलेक्ट 85 पॉइंट्स। और एक और बात है, इंडिया विक्स 4% गिर गया ऊपर से। तो उसमें से क्या हुआ, जितना भी पी प्रीमियम है वो फिकल के मेल्ट हो गया, लेकिन सी प्रीमियम इतना बढ़ा नहीं। तो आप लोग सोच सकते हैं, सबको पता था मार्केट ग्रीन में बंद होना चाहिए क्योंकि बीजेपी विक्टरी है, मार्केट भी उसका मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन क्या हमारा ऑपरेटर गवर्नमेंट के ऊपर है, इनके सामने किसी का कुछ टिकता नहीं। डीए ने अपना बहुत कोशिश की, लेकिन 3 बजे तक ये अपना बरकरार रखा अपना पोजीशन। उसके बाद जैसे इन्होंने पोजीशन छोड़ दिया, तब जाके इतना बड़ा अपमूव मिला। इनका एक ही मकसद है, रिटेलर को चूना लगाओ बस, और कुछ नहीं है। और रिटेलर सब लोग बुलिश था, तो उनको ये लगा कि भैया बीजेपी विक्ट्री आया तो मार्केट इसको मनाना चाहिए। इसी उम्मीद में सब लोग कॉल लेके बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग पुट सेल करके भी बैठा था। लेकिन उनको उन उम्मीदों में पानी भर दिया। जैसे 3 बज गया, 3 बजे के बाद कोई पोजीशन लेके और वीकेंड में कैरी करना कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपने पोजीशन से निकल गए। उसी में से क्या हो गया, पूरा शॉर्ट कवरिंग पे ऊपर शॉर्ट कवरिंग आते गया। तो यही होता है, अगर मान लो इसी के ऊपर से भी इंक्वायरी डालना चाहिए, क्यों 3 बजे तक ये लोग मार्केट को अपना जो पोजीशन बचाने के लिए इतना मैनिपुलेट कर रखा है। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। दो रहा बात दोस्तों पॉलिटिक्स के ऊपर, मुझे भी पॉलिटिक्स वाला डीप आता है, लेकिन क्या है, मैं इलेक्शन और पॉलिटिक्स इधर डिस्कस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारा स्कोप से बाहर है। we'll only focus on our scope and what are the levels and how to read the chart, what would be our market view for Monday. Come on, let us go and check what happened in the charts. हम लोग निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। निफ्टी का 45 मिनट्स चार्ट है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। 45 मिनट्स के ऊपर चार्ट यही बता रहे, देखो तो 750 में सपोर्ट बना रहा था। 45 मिनट्स और 5 मिनट्स का दो चार्ट आपको अगर निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो लगा कर रखना। 45 मिनट्स चार्ट आपको थोड़ा सा मिड टाइम का जो व्यू आपको दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कहाँ का ये सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। 50 एम के ऊपर था, जैसे 50 एम इसने तोड़ दिया तो 100 एम में सपोर्ट ले लिया। 200 एम बहुत ही नीचे था, तो 650 है, वहाँ तक आए तो है नहीं। तो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट देख लेते हैं एक बार। So if you look here, 5 minutes chart, see here. So Nifty from
760 it moved up to 940, almost 1 180 points. So this is not a natural move, this is unnatural move. इसको इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन. चलो खैर वो जो हो गया सो गया. हम लोग मंडे के लिए अपना डिस्कशन चालू करते हैं. 750 लेवल मार्क करना, जब तक 750 होल्ड है निफ्टी में बुलिश मूव इंटैक्ट है. और मान लो लॉन्ग के लिए किसी को खेलना है 940 जो हाई है, फ्राइडे का हाई है 940 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना. शॉर्ट के लिए 900 के नीचे आप शॉर्ट के लिए खोज लेना. बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम पैटर्न. Bank Nifty was around 58,200, and from there a single candle, almost 400 point single candle. Finally, it was able to close above 58,500. तो मंडे के लिए ये लेवल है. जब तक 58,500 के नीचे नहीं आते इसमें बेरिश व्यू नहीं लेना, तो शॉर्ट नहीं करना. और रहा बात लॉन्ग के लिए, ये 5600 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए खोजा. तो ये EMS देखते रहना, जब तक कि 20 MA के ऊपर चलता रहेगा ये चेंज हो जाएगा. मंडे मॉर्निंग में इनिशियल 15-20 मिनट्स के अंदर है जितना मूविंग एवरेज है ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ही आप देख लेना. तो मेरे हिसाब से मंडे इनिशियल 15-20 मिनट्स ट्रेड नहीं करना. सेंसेक्स में हम लोग देखे तो सही, इधर बताने की जरूरत नहीं. सेंसेक्स भी सेम पैटर्न, सेंसेक्स 600 पॉइंट मार दिया नीचे से. तो 84,100 से ऑलमोस्ट 84,700 तक पहुंच गया. 600 पॉइंट्स हेवी मूव है. लेकिन सी प्रीमियम इतना बड़ा नहीं है, ये भी एक सोचने वाला बात है. क्यों नहीं बड़ा, मैं अभी आगे जाके जो विक्स हम लोग देखे तब हम आपको समझ में आएगा. तो इधर भी ये आप शॉर्ट के लिए 84,500 के नीचे शॉर्ट करना. लॉन्ग के लिए मेरे हिसाब से 84,700 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग खोजना. और चलो हम लोग मिड कैप निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं. मिड कैप निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी ज़्यादा मूव नहीं किया. अराउंड 80 पॉइंट्स का मूवी आया है मिड कैप निफ्टी में. लेकिन मिड कैप निफ्टी में देखने वाली बात है, तो जब तक ये मिड कैप निफ्टी 13,900 के ऊपर नहीं जाता आप लॉन्ग के लिए नहीं जाना. शॉर्ट करना है 13,860 के नीचे शॉर्ट करना. तो इंडिया विक्स में आते हैं. इंडिया विक्स में सबसे बड़ा गेन हुआ इंडिया विक्स में, देख लेते हैं. इंडिया विक्स में जो 12.3 से ये गिर गया 11.8 तक, तो इसका मतलब है अराउंड 4% इंडिया विक्स गिर गया. इसी के चलते हुए जितना भी पी का प्रीमियम है वो सब फिकल गया. तो सी का प्रीमियम इतना बड़ा नहीं है, जितना मूव आया प्रोपोर्शनली प्रीमियम बड़ा नहीं है. तो और मैंने देखा था फ्यूचर में इतना मूवमेंट आया नहीं, ये सारे मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है. चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं. चलो दोस्तों हम लोग, और इंडिया विक्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन क्या एक इलेक्शन खत्म हो गया, बिहार का रिजल्ट तो पता चल गया, इसलिए इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हो गया. लेकिन क्या है अभी भी यूएस में अनसर्टनिटी बाकी है. यूएस का शटडाउन अभी भी खत्म नहीं हुआ, कोई भी डाटा वहाँ रिलीज नहीं हो रहे. CPI VPI कुछ भी WPI कुछ भी रिलीज नहीं हो रहे. और रहा बात हमारा USD INR का, अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं. USD INR में जब तक USD INR में स्ट्रेंथ आता नहीं है तो हम लोग बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर वगैरह वीक रहने वाले हैं. और अब बात क्रूड में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिले. अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं 5400 के पास आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं. और आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो 5280 5300 में आप बाइंग भी कर सकते हैं. गोल्ड में बहुत बड़ा गिरावट आया है क्योंकि कुछ कैश क्रंच का इशू चल रहा है यूएस में. तो इसलिए क्या है क्रिप्टो और गोल्ड वगैरह में बेट करने के लिए अभी लोगों के पास मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है. तो जब तक ये नया मनी प्रिंटिंग चालू नहीं करते तब तक इसमें इतना बुलिशनेस आएगा नहीं. लेकिन चाइना क्या है अननेसेसरली कभी कभी एक डिमांड बढ़ाता जाएगा, उसके चलते हुए बाउंसर्स भी आते रहेंगे. टू कंक्लूड आई वांटेड टू टेल यू गाइस, it is better to avoid gold and silver because China and US some level of gameplay is going on for gold and silver. So it is always better retail people should avoid this volatility. चलो some important events and data. तो फ्राइडे में 2 important डाटा आया. तो हमारा जो WP इन्फ्लेशन है वो भी एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आया. तो ये हमारा इसका मतलब हमारे इधर रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन है ही नहीं है. तो 0.13 था लेकिन आया नेगेटिव. लेकिन ये नेगेटिव आने पे एक और कंसर्न है. तो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब है तो जितना ग्रोथ आना चाहिए तो ये होलसेल रिटेल इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़कर आना चाहिए. तो दिस इज शोइंग ए इकोनॉमिक वीकनेस
एंड यू कैन से इकोनॉमिक स्लो डाउन। ऐसे चलेगा तो इधर के डिफ्लेशन हो जाएगा और हम लोग रिसेशन में चला जाएगा, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज कंसर्निंग। एंड फॉरेक्स रिजर्व है जो एक्सपेक्टेशन से हल्का सा नीचे है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देते नहीं। और नेक्स्ट वीक के लिए क्या डाटा है, तो हमारा ट्रेड बैलेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। दिस ट्रेड बैलेंस इज बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिफरेंस -32 बिलियन था तो प्रीवियस, और फॉरकास्ट है 29.4 बिलियन। और इससे ही अगर नीचे आ गया तो दिक्कत है, तो देखते रहना, ये आएगा मंडे शाम को आएगा डाटा। और वेनेसडे में यूएसडे क्रूड इन्वेंट्री का डाटा है, और थर्सडे को एफएमसी मिनट वार है। तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में ज़्यादा डाटा नहीं है एक्सेप्ट ट्रेड बैलेंस। So now let us quickly look at the FNO data and let us try to understand what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Monday, and let us also try to identify where our market can go. So friends, इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में मिक्स टू बेयरिश है, ज़्यादा कारोबार नहीं है। रिटेलर डीए कुछ बाय किया, एफए एंड प्रोस ने कुछ सेल किया, तो मिक्स्ड बेयरिश में ही कहूँगा। इंडेक्स कॉल का डाटा देगा तो रिटेलर ने 91,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया इंडेक्स कॉल का, तो उसके चलते उसका लॉन्ग से शॉर्ट पहुंच गया 41,000। एफ एन प्रोस का नेट लॉन्ग है, प्रोस ने 86,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, एफ ए का 5,000 दिए। दिस डाटा शोज मिक्स्ड टू बुलिश। इंडेक्स पुट ने रिटेलर 1.62 लाख और सेल कर दिया इंडेक्स पुट शॉर्ट, तो 4.24 लाख उनका पहुंच गया। डीए ने 14,000 सेल कर दिया, एफ ए ने 46,000 बाई कर दिया, उसका 2.66 पहुंच गया लॉन्ग। प्रोस ने बहुत बड़ा नंबर पे लॉन्ग ऐड कर दिया 1.3 लाख, इसके चलते इसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.33 लाख। सो दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। If you compare index call and index put is having more weightage, क्योंकि इधर इतना वॉल्यूम है नहीं, देख लो, लेकिन इधर बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी बुरी खबर, तो सारे अदर देन रिटेलर्स ऑल आर सेलिंग, सो आई वुड से दिस डाटा इज आल्सो मिक्स्ड टू बेरिश। स्टॉक कॉल में भी रिटेलर बुलिश जा रहे, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स है और बेरिश जा रहे, तो दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। स्टॉक पुट का रिटेलर यहाँ पे भी बुलिश जा रहे और बाकी एफ ए का ज़्यादा कारोबार ले, लेकिन प्रोस ने सेल करके जा रहे, तो दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड बेरिश। सो ओवरऑल आई वांटेड टू कंक्लूड index options retailers are mixed to bullish and stock options ultra bullish. FA and pros in index option mixed to bearish, stock options they are also mixed to bearish. तो अब कोई लोग सोचेगा इंडेक्स वॉल में इससे क्या हो सकते हैं, डाउन में कैप रह सकते हैं, हो सकते हैं 750 के नीचे टूटेगा नहीं, 25,750 के नीचे टूट नहीं, तो इंडेक्स इसी का मतलब यही है, तो नीचे का मूव कैप रह सकते हैं। और कैश मार्केट डाटा देगा तो डीए ने पंप कर दिया इतना 8,461 करोड़, एफ ए ने अराउंड 5,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया, बाकी जितना भी सेलिंग है 3,500 करोड़ का, और प्रोस एंड रिटेलर का है। तो टॉप गेनर में हम लोग चलते हैं। टॉप गेनर में बहुत सारे स्टॉक्स है, तो जितना भी ये हेवी वॉलेज मैंने आप लोगों को बोला, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स वगैरह में भी बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाना, जिन्होंने भी बाई किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो बेल में मैंने आप लोगों का बेल का के टेम्पररी, जैसे इन अनदर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप पोजिशनली लॉन्ग सोच सकते हैं बेल में, BL। एक्सिस बैंक में इधर से कोई भी उछाल आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना है एक्सिस बैंक। और रहा बात एशियन पेन में क्या है, इतना रैली आ गया, मैंने बोला आप लोगों को जो फ्राइडे का वीडियो में, इसमें भी बाय ऑन डिप्स चलेगी, लेकिन क्या है अभी इधर से कोई भी उछाल आते हैं एशियन पेन में, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग बनता है, चाहे तो आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए में देख सकते हैं। और एसबीआई लाइफ भी कोई भी इसमें से उछाल आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। चलो, टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है, इन्फी वगैरह में बहुत बहुत जितना भी आईटी स्टॉक्स है, लेकिन इन्फी सबसे ज़्यादा पिट गया। अभी के इन्फी में अगर मान लो बड़ा डिप आ जाते हैं, वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनते, तब जाके आप इसमें लॉन्ग के लिए सोचना, इसमें आगे शॉर्ट के लिए नहीं सोचना। एशियर मोटर में भी अगर और डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और जितना भी जो जैसे मैंने बोला अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, अगर इसमें कोई छाल आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना। ये वॉल्यूम आप देखते रहना, अगर वॉल्यूम के मुताबिक आप ट्रेड ले लेना। Take a quick view on our technical view and outlook for Monday.
We'll start from Nifty 50. So if Nifty is going below 25,900, then go for shorts. First target 840 followed by 800. एंड जब तक 25,750 होल्ड है इसमें बाउंसेस आता रहेगा. लॉन्ग्स के लिए जो फ्राइडे का हाई है 25,940 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना है. फर्स्ट टारगेट 26,000. इफ दैट इज ब्रोकन देन 2630. मंडे के लिए मैं इतना टारगेट नहीं देख रहा हूँ. अगर एक बार 2630 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं 26,100 तक, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है. मेजर रेसिस्टेंस है 26,000. जब तक 26,000 के नीचे सेल ऑन राइज का मामला इसमें चलते रहेगा. तो व्यू है short below 20 MA only, and one more short you can initiate from 26,000. बैंक निफ्टी 58,500 के नीचे शॉर्ट करना तो आपको 58,000 तक इसमें टारगेट मिल सकते हैं. जब तक 57,750 होल्ड इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा. और लॉन्ग के लिए 58,600 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, आपको 58,900 तक टारगेट मिल सकते हैं. मेजर रेसिस्टेंस है 58,600. 80 HP है. तो बैंक निफ्टी विल बी बुलिश only above बैंक निफ्टी विल बी बियरिश बिलो 58,500. अगर एक बार ये तोड़ दिया तो आपको ये शॉर्ट करना है. और एक और शॉर्टिंग के लिए लेवल है 58,500 to 700. अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहे हो तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. सारे पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं मुझे. अभी न्यूट्रल ज़्यादा ओवर सोल्ड टेरिटरी में नहीं है और बोट में भी नहीं है. सेंसेक्स 84,500 के नीचे शॉर्ट करना है. 84,000 तक टारगेट आपको मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 84,700 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना है तो 85,000 तक मिल सकता है टारगेट. मेजर रेसिस्टेंस 85,000 है. तो सेंसेक्स में अगर एक बार 84,400 तोड़ दिया तो बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं. एक और है 84,700 800 पे रेसिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं. मिड कैप में 13,860 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं. 13,750 तक टारगेट मिल सकते हैं. और लॉन्ग के लिए 13,900 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना है. 13,980 तक मिल सकते हैं. मुझे नहीं लग रहा है 14,000 एक क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा मंडे. तो मेरे हिसाब से अवॉइड कर लेना मिड कैप में लॉन्ग स्टिल द टाइम इट इज होल्डिंग बिलो 13,900. तो एक और एटीएच के पास आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. इसका पीसीआर अच्छा दिख रहा है मिड कैप का. तो मेरा व्यू है मार्केट बिहार इलेक्शन का ऑलरेडी रिजल्ट को अकोमोडेट कर लिया, तो अकाउंट कर लिया. और फ्रेश अप मूव के लिए इसको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, ट्रेड डील वगैरह का न्यूज़ चाहिए, नहीं तो इतना अप मूव नहीं आ सकता इसमें. तो हो सकता है जितना ये बुलिश मोमेंटम था वो थोड़ा सा मोमेंट और कंटिन्यू हो सकता है, वहां से सेल ऑफ आ सकते हैं. अरे भी न्यूट्रल स्टैंड है एंड और मार्केट विल एंड मार्केट ग्लोबल मार्केट जहाँ जा रहे हैं हमारा मार्केट भी वहाँ जा सकते हैं. स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड, बी रेडी फॉर बोथ साइड्स. तो आप दोनों साइड के लिए मंडे के लिए रेडी रहना. चलिए हम लोग एक बार फ्यूचर के ऊपर भी देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट, so US futures, Dow it is still showing 0.66% down, that is 270 points, and Nasdaq is showing little positivity. लेकिन एक टाइम ऐसा था तो ये डीप रेड में था. उसके बाद क्या स्विट्जरलैंड का जो ट्रेड डील यूएस मार्केट को बचा लिया, नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी आया. तो इसी के चलते हुए गिफ्ट निफ्टी भी 80 पॉइंट्स का गैप अप दिखा है, लेकिन इतना गैप अप होने वाला है नहीं है. तो क्या हो सकता है, तो मंडे में अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स डाउन दिख रहे हैं तो ये भी कूल ऑफ हो जाएगा. गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है. मेरे हिसाब से ये फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव होगा, क्योंकि इतना बुलिश मोमेंटम जो लास्ट में आया और थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकते हैं, वहां से एक शार्प सेल ऑफ भी हो सकते हैं. तो आप देखते रहना और लेवल टू लेवल खेलना मंडे को. So that's all in this video guys. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you.